what I want should not be confused with total inactivity. ठीक है ना? We have already seen green wars, uh, war with gas and war with fire. And do you think these wars are useful? Are they doing any benefit to us? No, they are not doing any benefit to us. So now what we are learning here is that what I want should not be confused with total inactivity. What the poet is saying here, कि please do not misunderstand my words. I do not mean to say that you have to be quiet, you don't have to do anything, you just have to be still. No. What does he mean by that? You have to do meditation and stop doing those activities which are harming nature and our environment. Is that clear? So what do we mean by inactivity here? Total inactivity, just write down. So the meaning of total inactivity is to be in the state of meditation, because that is inactivity. To be in the state of meditation, and the other one is leaving those harmful activities which are harming ourselves as well as the environment. So that is total inactivity the poet is talking about. Is that clear? तो आपको बाकी के काम तो करने हैं. You have to be active in all those things. अभी I'm coming to that. So what he's saying कि what I want should not be confused with total inactivity. पूरी पोम में पोएट क्या कह रहा है कि भाई you have to keep quiet, you have to be still. So the poet is saying कि please do not misunderstand my words. आपको उससे टोटल इनएक्टिविटी के साथ कंपेयर नहीं करना है. आई एम नॉट सेइंग कि भाई आप टोटली इनएक्टिव हो जाओ, कुछ करो ही मत. बस वो वाली चीजें मत करो विच आर हार्मिंग आवर नेचर एंड एनवायरमेंट और आवर सेल्स ऑल्सो. हम खुद भी तो ऐसे काम कर रहे हैं ना जो हमारे नेचर को हार्म कर रहे हैं. सो दैट वी हैव टू स्टॉप. इज दैट क्लियर? अब ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है. लाइफ इज वॉट इट इज अबाउट. लाइफ इज वॉट इट इज अबाउट. एक ही लाइन है और ये इस पे एक पूरा क्वेश्चन आ सकता है आपका. इसका मतलब है कि लाइफ मीन्स एक्शन. लाइफ डज नॉट रेसिप्रोकेट टू एनी स्टिलनेस. अगर आप कह रहे हो कि कोई चीज जिंदा है, समथिंग इज अलाइव, सो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट लाइफ हैज समथिंग विच इज गोइंग ऑन. तो जिंदगी का मतलब ही क्या है? कि कोई चीज चल रही है, समथिंग इज गोइंग ऑन, दैट इज लाइफ. तो लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट. सो जस्ट राइट डाउन few points. Like, life means constant growth and activities, continuous activities. However, we need to eliminate those activities which are jeopardizing, or jeopardize करना मतलब किसी चीज को बर्बाद करना, नुकसान पहुंचाना, which are jeopardizing ourselves and our environment. So life is what it is about. तो लाइफ का मतलब यही है कि मूव ऑन करो, हमेशा एक्टिव रहो, एक्शंस में रहना है, लेकिन वो एक्शंस मत करो जो बर्बाद कर रहे हैं हमें, और हम यही कर रहे हैं बेसिकली. सो बस उस पर आपको ध्यान देना है. आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ. वो वाले एक्शंस जो क्या कर रहे हैं? कॉजिंग मास किलिंग, मास डेथ, मतलब डेथ इन ग्रेट क्वांटिटी. बस वो वाली चीजें आपको अवॉइड करनी है. ठीक है? सो दीज आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ आवर एक्शंस जिसपे हमें वर्क करना है एंड स्टॉप डूइंग दैट. इकोलॉजिकल इम्बैलेंस जो हम खराब कर रहे हैं, ये जो अभी न्यूक्लियर वॉर्स चल रहे हैं, क्या इससे एक दो ही बंदे मरेंगे? सो मेनी पीपल आर गोइंग टू बी किल्ड. तो हमें वो वाले एक्शंस नहीं चाहिए जहां पे जो डेथ्स है वो दे आर इन लार्ज नंबर. वी हैव टू अवॉइड दैट. नाउ there is another important line. If we were so single minded about keeping our lives moving and for once could do nothing, perhaps a huge silence. बहुत लंबी लाइन है, इसको थोड़ा सा डिवाइड करके करते हैं. पहले लिखो सिंगल माइंडेडनेस. what do you mean by single mindedness here? एक ही चीज के ऊपर हमारा फोकस है, और वो क्या है? what is that single mindedness in our life? क्या चाहिए सबको आज के टाइम में?
पैसा. Yes, we want materialistic pleasure, and that is the single mindedness, and for that we can do anything, we can go to any extent. So if we were not so single minded about keeping our lives moving, हम अपनी लाइफ को मूव कैसे कर रहे हैं, बस एक ही चीज के पीछे पागल हो गए हैं, वी हैव बिकम मटीरियलिस्टिक, और इसी के लिए हम सारा नेचर को भी हार्म कर रहे हैं, अपने आप को भी दुख दे रहे हैं. वी आर डूइंग दैट, एंड आर वी लुकिंग एट आवर हर्ट हैंड्स? Are we looking? No. Just because we are mad with this single mindedness. So you can write single mindedness is blind pursuit for materialistic things. It's a blind pursuit for materialistic things. And for once could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt this sadness. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है यहाँ पे कि दिस सैडनेस, कौन सी सैडनेस को इंटरप्ट करेगा हमारा साइलेंस? अगर आपने थोड़ी देर के लिए अपनी उस सिंगल माइंडेडनेस को हटा दिया, थोड़ी देर शांत बैठ गए, है ना, इफ यू कीप क्वाइट, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? यू विल हैव दैट रियलाइजेशन. क्या रियलाइजेशन आएगा यहाँ पे? यू विल हैव दैट रियलाइजेशन कि हम उस सैडनेस को इंटरप्ट करेंगे. अब यही एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, सैडनेस क्या है? सो व्हाट इज सैडनेस हियर? सैडनेस ऑफ never understanding ourselves and threatening ourselves with death. ये सैडनेस है. तो एक क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी की बुक में भी, ये करना है आपको कि व्हाट इज सैडनेस. तो सैडनेस क्या है कि वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड आवर सेल्स. हम समझ ही नहीं पा रहे हैं, हम अपने आप को नहीं समझ पा रहे हैं. नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्स एंड थ्रेटनिंग आवर सेल्स विद डेथ. हम वो वाले काम कर रहे हैं आज के टाइम में जो हमारे ही एग्जिस्टेंस को हार्म करेंगे. जैसे कौन से काम है ऐसे जो हम कर रहे हैं विच आर गोइंग टू हार्म आवर ओन लाइफ? द वे वी आर एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेस, ग्लोबल वार्मिंग जिस तरह से बढ़ रही है, डू यू थिंक वी आर गोइंग टू सर्वाइव आफ्टर दैट? है ना, जिस लेवल पे हमने पोल्यूशन क्रिएट करा है, द वे वी आर कंटेमिनेटिंग द रिवर्स एंड यू नो इवन ओशंस, दे आर ऑल्सो पोल्यूटेड. उसके यस, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं. ये सारी चीजें किसकी वजह से? क्या हमें समझ आ रहा है ये सब कुछ? और अगर पर्सनल लेवल पे देखो तो एंजाइटी, वी हैव गॉट सो मच यू नो प्रॉब्लम्स, टेंशंस, हाइपर टेंशंस. आज के टाइम में मोस्ट ऑफ द पीपल आर सफरिंग फ्रॉम मेंटल डिसीजेस, साइकोलॉजिकल डिसीजेस. क्या ये सही है हमारे लिए? इन द लॉन्ग रन आर वी गोइंग टू गेट बेनिफिटेड बाय देम? इतनी सारी डिसीज, मेंटल डिसीज, फिजिकल डिसीज एंड ऑल दैट. तो सैडनेस क्या है कि हमें समझ ही नहीं आ रहा है. वी डू नॉट अंडरस्टैंड. इंटरप्ट दिस सैडनेस ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स एंड थ्रेटनिंग आवरसेल्व्स विद डेथ. हमें यही नहीं पता कि हमें चाहिए क्या. हम एक पागलों की तरह उस मटेरियलिस्टिक परस्यूट के पीछे भाग रहे हैं, बट वी डोंट रियलाइज कि ये सब पाके हमारा अपना एग्जिस्टेंस तो खत्म ही हो जाएगा, हम तो मर ही जाएंगे. तो फिर क्या करोगे उस पैसे का? चाहे आप पर्सनल लेवल पे देख लो या फिर एक ब्रॉडर लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे, दोनों ही सेंस में दीज थिंग्स आर गोइंग टू हार्म अस. तो हम अपने आप को जो हार्म कर रहे हैं, दैट वी हैव टू स्टॉप. और उसका एक ही सोल्यूशन है, कीप क्वाइट. एक ह्यूज साइलेंस चाहिए हमें, थोड़ी देर के लिए शांत बैठना पड़ेगा, और तभी आप उस चीज को रियलाइज कर पाओगे कि यस, व्हाट इज हैपनिंग, राइट? सो नाउ दिस हैज गॉट द लास्ट पार्ट हियर. Now you can see this. बस एक लास्ट चीज और इसमें, perhaps the earth can teach us as when everything seems dead. इसके ऊपर एक अलग से एक क्वेश्चन बनेगा कि अर्थ क्या सिखा रही है हमें. डू यू थिंक अर्थ कैन ऑल्सो टीच अस समथिंग? क्या सिखाती है अर्थ? ओके, हाँ, लेकिन अभी हम कीपिंग क्वाइट वाले कॉन्टेक्स्ट में ही देखेंगे. इस लाइन को देखो, perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive. अर्थ में जब आप सीड्स डालते हो तो ऐसे एक मिनट में वो ऊपर आ जाता है, तो उसका पौधा निकल के जिस दिन सीड डाले उसी दिन ही आप देखते हो कि एक बड़ा सा पौधा निकल के ऊपर आ गया, ऐसा होता है? नो. तो जब वो सीड हमने अंदर डाल दिया अर्थ के अंदर, तो द जर्मिनेशन प्रोसेस हैज स्टार्टेड. लेकिन आपको ऊपर से कोई मूवमेंट कुछ पता चलता है? डू यू रियलाइज एनी मूवमेंट? नहीं. बिल्कुल कैसा होता है वो? क्वाइट. तो कैन यू बिकम एक्टिव जस्ट बाय रिमेनिंग साइलेंट फ्रॉम आउटसाइड?
सो अर्थ क्या कर रही है, ऊपर से तो बिल्कुल शांत है, क्वाइट है, लेकिन फिर भी उसकी जर्मिनेशन प्रोसेस चल रही है, एंड देन इट विल कम अप, देन द सीड विल बी जर्मिनेटेड। तो वही चीज हमें करनी है कि बाय एपरेंटली रिमेनिंग स्टिल, अगर मैं अभी एक मेडिटेटिव स्टेट में हूं तो मेरी बॉडी तो मूव नहीं कर रही है, लेकिन क्या मेरे अंदर जो थॉट्स हैं क्या वो प्रोसेस हो रहे हैं, और क्या उससे नए आइडियाज जनरेट होंगे। कंपेयर कर पा रहे हो दोनों चीजों को। अर्थ में जब आपने सीड डाला